Just a quick recap. Up till now, we have gone through these basic skills where we were only dealing with algebraic expressions. We expanded them, we factorized them, we added, subtracted, multiplied, or divided, or simplified algebraic fractions. Now, moving on towards equations. Before you start dealing with equations, very important skill is to understand how to rearrange them. Rearrange equations. Now, why do we need to study this in depth? Because I have seen students, let's say if I ask them to solve this, not all of them, but majority of students, they will take this 2 first for the on the other side for multiplication, which is totally wrong. Okay, now we will see which is the correct method to do so. Okay, how to decide which one goes to the other side first. And there are two different ways, two different approaches, and both are correct. One is balancing method. Do you have a pen? Spare pen? Can you get one for him? One is a balancing method, and one is simply just getting rid of extra things. Okay. Now, let's wait for him. Okay? Let him come back. Let's start with that. Should we start? Chalo. Achha, beta, the key rule which we are going to follow here is BIDMAS. Okay, now I'm going to write down all the important points. Now, the first important point is terms are separated by plus or minus sign. You identify factors by multiplication, division. Okay, so these are the two important points. We will be looking into every question. We will be looking into these things in every equation. Okay, the BIDMAS rule, but in the opposite direction. ठीक है, BIDMAS रूल आप सबने पढ़ा हुआ है। BIDMAS रूल को जब आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना है, आप BIDMAS रूल का ऑपोजिट चलते हैं, रिवर्स. सो एडिशन सब्ट्रैक्शन वी टेक इट एज अ पेयर, हम इसको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. सो अब पहला रूल, इसकी यहाँ पे मैं डिटेल्स लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे. The first step, not the first step, the first priority, I would say. Okay, isolate
the terms. We are going to isolate the terms. Okay, first of all, or isolate the term with the desired variable. Second, this part here, division multiplication, we can do these two simultaneously. Now, if I explain that part, get rid of factors or divisors. Whatever is being multiplied or divided with the desired variable, get rid of that. Finally, this part here, indices and brackets. Get rid of powers. ठीक होगा? अच्छा, फिटमेस रूल को जिस डायरेक्शन में हम लेके चलते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको लेके चलना है. दीज आर नॉट स्टेप्स, दीज आर द प्रायोरिटीज डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन. किसी इक्वेशन में हो सकता है ये सिचुएशन ही ना हो, लाइक आइसोलेट द टर्म, तो आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, गेट रिड ऑफ द फैक्टर्स. ठीक हो गया? फिर उसके बाद आप आएंगे इसके ऊपर. अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप व्हेन यू विल गेट रिड ऑफ द फैक्टर्स, देन यू विल नोटिस कि अब ये सिचुएशन आ गया, पहले ये नहीं था, अब ये आ गया. तो फिर हम इस प्रायोरिटी पे आ जाएंगे. सो दीज आर द प्रायोरिटीज, वी विल बी डूइंग दिस इन लूप्स. ठीक हो गया? तो प्रायोरिटी आपने देखनी है. सो दिस इज द प्रायोरिटी, दीज आर द प्रायोरिटीज. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी. व्हेन प्रायोरिटीज क्यों दी हैं? जब तीनों इकट्ठे हो रहे होंगे, यानी में से कोई सी दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं साइमल्टेनियसली, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच वन इज टू बी डेल्ट विद फर्स्ट. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये पार्ट समझ में आया? इसको लिखें क्योंकि हमने इसको बार बार यूज करना है. क्योंकि मैं आई एम नॉट गोइंग टू रेफर बैक टू दिस पेज अगेन, दिस इज फॉर योर रेफरेंस ओनली. वी विल बी आप इसको अपने पेज पे लिख लें ताकि हम इसको बार बार जब रेफर करें तो आपको आसानी हो. Those who have just joined, kindly take a quick screenshot of this. Okay, let's just do some questions and see how to apply these rules. I'm going to start off with a very basic one. And I want you to notice how those rules they work. So if I ask you to make the variable x the subject over here, so if you follow the bit mass rule in the opposite direction, okay, before we jump towards this, how many terms do you see on the left side of the equation? 2. And how many terms do you see on the right side of the equation? 1. Okay, so if we follow this bit mass rule in the opposite direction, our first priority is to... Sir, can you please share the previous slide again? Okay, sure. Let me know once you're done so that we can proceed further. Done? Yes, sir, done. Okay. So if we follow the bit mass rule in the opposite direction, we need to get rid of those which are being added or subtracted. जिसकी मैंने आपको explanation लिखी है. Isolate the terms. So this is the desired variable x. We need to isolate this term with the desired variable. So in order to isolate this, we will be getting rid of those which are being added or subtracted. तो इसको उधर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा? X equals b minus a. लें जी, आपका x subject बन चुका है. So we call this as make x the subject of the equation. So this in this one, x is the subject.
अच्छा, अब इसी इक्वेशन, अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। So let's suppose you have a question 3x minus a equals to b. How many terms are there on the left side? Two terms. How many factors are there in the first term? Two factors. 3 multiplied by x. So these are the two factors here. ठीक है? Now let's follow the bid match rule in the opposite direction. अब यहाँ factors भी हैं और terms भी हैं. According to the rule, are we going to get rid of those which are being added, subtracted, or multiplied and divided? जो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं पहले उनको खत्म करना है, या जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही Sir, add है? and बिड मैच रूल को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करें। तो जो चीजें पहले ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो इसकी मैंने आपको प्रायोरिटीज जब लिख के दी हैं, तो उसमें टॉप प्रायोरिटी क्या है? जब फैक्टर्स भी आ गए और टर्म्स भी आ गए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आइसोलेट द टर्म विद द डिजायर्ड वेरिएबल। ठीक हो गया? सो दिस इज द डिजायर्ड वेरिएबल and this is the term with the desired variable, so I need to isolate this one, so get rid of extra terms। ठीक हो गया? so यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x equals b plus a। now finally जो चीजें डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, वो अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। ये हमने x को सब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट बोल के इधर ही करते हैं। x over 3 minus 2y is equals to c। अगेन आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है? जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मोस्टली मैं x ही को सब्जेक्ट बनाऊंगा। इधर मैंने लिखा नहीं था, इधर भी x को सब्जेक्ट बनाना है। सो हाउ मेनी टर्म्स डू यू सी ऑन द लेफ्ट? टू टर्म्स। ठीक है? पहली टर्म में आपके पास एक फैक्टर है 1/3 और दूसरा फैक्टर है x। सेकेंड टर्म में एक फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है y। ये अच्छा, हमारा टारगेट ये नहीं है कि इनको सेपरेट करना है, हमारा टारगेट क्या है? x को सब्जेक्ट बनाना है। तो इफ यू फॉलो द बिट मैच, जो अभी मैंने शुरू में एग्जांपल लिखी है, कॉमन मिस्टेक बताई कि स्टूडेंट पहले 3 को तो ले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के, व्हिच इज रॉन्ग। सो इफ यू फॉलो दिस bid match rule in the opposite direction, तो first priority में we need to get rid of the terms which are being added or subtracted, we need to get rid of extra terms। so this is our target variable जिसको मैंने subject बनाना है। this is the term containing that variable, so we need to isolate this, so get rid of this one first। तो ये आपके पास आ जाएगा x over 3 equals to c plus 2y। now finally जो चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स 3 टाइम्स c प्लस 2y। आगे इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, ऐसे लिखना है। अभी हम उस चीज को नहीं देख रहे। ठीक है? अभी हम सिर्फ देख रहे हैं सब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो x हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन और ट्रिकी कर देते हैं। थ्री इंटू 2x माइनस ए इक्वल्स टू बी। अब लेफ्ट साइड पे कितने टर्म्स हैं, या चलो कितनी टर्म्स है? टर्म्स कितनी, आप बताएं। इज इन Yeah, yes, sir. 2. मोहम्मद, Sir, 1. Arun, Arun, how many terms are there? 1. Iman, Abdurrahman. Terms are separated by a plus or minus sign. If you look at the left hand side of the equation, just once, is there anything being added into these two factors? इस एक ये फैक्टर इसके अंदर डेफिनेटली दो टर्म्स है, बट ओवरऑल और कोई बाहर वाली साइड पे कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है? नो। so there is just one single term, one single term। तो फिर isolate the term
तो सवाल भी नहीं पैदा, इट्स ऑलरेडी आइसोलेटेड, दिस इज जस्ट वन सिंगल टर्म, फैक्टर फॉर्म में आ गए। ठीक हो गया, जब आप फैक्टर्स बना लेते हैं तो एक ही टर्म बन जाती है वो। अच्छा, follow this in the opposite direction. First priority was this, that's not the situation here. What is the situation here? जो चीजें multiply divide हो रही हैं, get rid of that. So what is being multiplied here? This is the target variable. क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ओवरऑल? अभी फैक्टर फॉर्म में ये कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर है 3, दूसरा फैक्टर है 2x माइनस a। एक फैक्टर है 3, दूसरा फैक्टर कौन सा है? 2x माइनस a। जो फैक्टर है उसकी आगे फर्दर आप देखें दो टर्म्स हैं, उसमें फिर पहली टर्म देखें उसमें दो फैक्टर्स आ गए। मैं ओवरऑल देख रहे हैं हम सिंगल टर्म में दो फैक्टर्स हैं, तो कौन से फैक्टर को मुझे उधर लेके जाना है? 3 को या 2x माइनस a को? 3 को। इसको तो नहीं लेके जाना, इसी इसी के अंदर तो वो है वेरिएबल हमारा डिजाइड। सो लेट्स गेट रिड ऑफ द 3। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस a इक्वल्स टू b ओवर 3। तो अब यहाँ पे मैंने आपको जो प्रायोरिटीज बताई थी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में वी वर गेटिंग रिड ऑफ द फैक्टर्स। नेक्स्ट, अब कितनी टर्म्स हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे? आप प्रायोरिटी देखें, वापस टॉप वाली प्रायोरिटी पे आ जाएंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट रिड ऑफ माइनस a. So 2x is equals to, we need to isolate the term containing our desired variable. So is equals to b over 3 plus a. Now this 2 is being multiplied here, वो तो जाके divide हो जाएगा। So 1 over 2 हो जाएगा उधर जाके, b over 3 plus a। ठीक हो गया? Clear? Yes, online students, any doubts? बताएं जी। No, sir. Okay. 3 into 2x minus b whole square minus c is equals to d। x को सब्जेक्ट बनाना है, किसको सब्जेक्ट बनाना है? x को। On the left hand side, what do you see? टर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में टर्म्स हैं या फैक्टर फॉर्म है? टर्म्स हैं। हाउ मेनी टर्म्स आते हैं? दो टर्म्स है, एक आपके पास c और एक आपके पास ये पूरी एक टर्म है। ठीक हो गया? अच्छा, सो डिजायर्ड वेरिएबल या प्रायोरिटीज को अगर आप फॉलो करें तो पहले हमने क्या करना है? आइसोलेट द टर्म्स या फिर गेट रिड ऑफ द फैक्टर्स या फिर गेट रिड ऑफ द पावर। तीनों चीजें हो रही हैं यहाँ पे। Get rid of the term, isolate the extra, we are going to isolate the desired term, the term with the desired variable, get rid of the extra terms. So 3 into 2x minus b whole square equals d plus c. Then कितने factors हैं? How many factors do you see here? Two factors. One factor is 2x minus b whole squared, okay, and the other factor is 3. ठीक है? Now priority क्या है? Get rid of the factors or get rid of the power? Factors. This is going to leave us with 2x minus b whole square equals d plus c whole divided by 3. Now next, अब आप देखें यहाँ पे अंदर आपके पास दो टर्म्स हैं बट दे आर बाउंडेड बाय अ पावर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी यहाँ पे क्या होगी? गेट रिड ऑफ द पावर्स। इंडिसेस जो बिड मैथ्स में आई आता है, गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा इंडिसेस। इन दिस केस इट इज 2। सो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो गया। पूरे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। Now remember this again, a very important rule जो कि इस टॉपिक से नहीं है। Whenever you introduce a square root on your own in an equation, किसी भी इक्वेशन में जब आप खुद से एक स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे अभी हम लेने लगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, it always leaves you with two polarities.
positive and negative. For example, if this is written only, तो फिर आंसर क्या होगा? Just 2. Just 2. Because this root was not introduced by me. This was the given question, root of 4. तो फिर हम इसका आंसर सिर्फ क्या लिखेंगे? 2. लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है एक इक्वेशन है y is equals to 4, y की वैल्यू फाइंड आउट करें. So understand the meaning of the equation. कि यू आर लुकिंग फॉर अ नंबर y जिसका स्क्वायर लेने से आंसर 4 आता है. वो तो दो नंबर है, +2 का स्क्वायर लूंगा तो भी आंसर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर लूंगा तो भी 4 आएगा. इसीलिए whenever you introduce a square root on your own, अब यहाँ पे in order to get rid of square I am introducing square root on my own. So that is why you always put a plus and a minus sign. ये स्क्वायर से कट गए, आपके पास क्या आ गया? +-2. ठीक हो गया? ओके, सो यहाँ पे वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं. वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस एंड माइनस. ओके, सो दैट लीव्स अस विद 2x minus b equals to plus minus root of b plus c. इधर से घबराना नहीं है कि ये मैस होता जा रहा है राइट साइड पे इक्वेशन के. हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. राइट साइड पे जो मर्जी मैस बने, ठीक है. हमारा टारगेट है x को सब्जेक्ट बनाना. आप बताएं लेफ्ट साइड पे क्या सिचुएशन है? टर्म सिचुएशन, फैक्टर सिचुएशन. टर्म, सो गेट रिड ऑफ द टर्म व्हिच इज द एक्स्ट्रा टर्म हियर. b, दिस b इज बीइंग माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. रूट के बाद कोशिश किया करें ना लिखा करें टर्म जो विदाउट पावर. अगर विदाउट पावर है तो वो, क्योंकि वो अक्सर फिर जल्दी में ये थोड़ी सी भी आप, क्योंकि जल्दी में अगर आपने ये थोड़ी सी लाइन लंबी लगा दी ऐसा लगेगा कि ये जो बी है आपका ये भी रूट के अंदर है. तो अगेन एग्जामिनर को आपने किसी भी सिचुएशन में डाउट में नहीं डालना. सो यू हैव द लिबर्टी है, यू कैन पुट द थिंग्स विदाउट द रूट बिफोर द रूट. सो मैं इसको लिख दूंगा माइनस बी, तो जाके क्या हो जाएगा? प्लस बी, बी प्लस सी ओवर बी. नेक्स्ट, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो गया, क्या होगा? 1/2 b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d प्लस c ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज. ये पूरी ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि 1 ओवर ये 2 है इधर आके ये डिवाइड होगा उसके साथ. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम? ये मुश्किल सवाल लिया था मैंने, समझ में आया? यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स अपनी प्रायोरिटीज चेंज की डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. अब मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ. ax होल स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू b. x को सब्जेक्ट बनाए बेटा इसके अंदर. हाँ जी, क्या करें? टर्म सिचुएशन, फैक्टर सिचुएशन या पावर सिचुएशन? व्हिच सिचुएशन वी शुड बी डीलिंग विद फर्स्ट? फैक्टर, यानी आप कह रहे हैं a मल्टीप्लायर है, पहले इसको ले लें. term, which term should I take there? So this is going to give us ax squared is equals to b plus 3. Next, term situation, factor situation, या फिर sorry, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पे. This was ax whole squared. हाँ जी, अब बताएं टर्म सिचुएशन, फैक्टर सिचुएशन और पावर सिचुएशन. एक उधर लेके जाना है पहले, मिड मैच रूल के ऑपोजिट फॉलो करें. सर इसको स्क्वायर खत्म करना है. पहले स्क्वायर खत्म करेंगे हम, पहले स्क्वायर खत्म करेंगे. अच्छा जी, स्क्वायर खत्म करते ये क्या हो जाएगा जी? दोनों तरफ रूट लेंगे, ये क्या आ जाएगा? इधर आ गया ax, इधर आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ b प्लस 3. ठीक है? अच्छा जी, अब फैक्टर सिचुएशन, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ b प्लस 3 ओवर
Okay. Whenever you are doubtful about a situation, जैसे भी आप डाउट में थे कि मैं पहले ए को उधर लेके जाऊं, सो बैलेंसिंग मेथड से फौरन दिमाग में टेस्ट कर लिया करें, उसको बोलते हैं फंक्शन मशीन मेथड भी बोलते हैं उसको. सो मींस यू आर थिंकिंग कि पहले ए जाना चाहिए, लेट्स वेरीफाई दिस. तो पहले ए इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, तो बैलेंसिंग मेथड के मुताबिक मुझे ए को डिवाइड करना है. ए डिवाइड तो कर लिया मैंने, तो क्या ये ए इस ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर रहा है? नो. तो इसका मतलब है आपने गलत डिसीजन लिया है यहाँ पे. ठीक हो गया. यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, और काफी सारी सिचुएशंस में ये काम आता है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक और पॉइंट लिखें बेटा. When desired variable appears multiple times on either side of equation, then we collect the terms together. अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि करना कैसे है. ओके, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है आपको 5x प्लस p इज इक्वल्स टू 2x माइनस r. x को सब्जेक्ट बनाना है, x को सब्जेक्ट बनाना है. x इधर भी है इक्वेशन के लेफ्ट साइड, दिस इज द इक्वालिटी साइन. We have x on the left side and we have x on the right side. So we need to collect them together on one side of the equation before making subject and merge them together. So let's bring all the x's on one side. So 5x, इधर आगे क्या हो जाएगा? Minus 2x. और at the same time I'm isolating, mean getting rid of extra term. So this is extra term. तो ये तो जाके क्या हो जाएगा? Minus p. Now, luckily 5x minus 2x, 5 lots of x minus 2 lots of x कितना आता है? 3 lots of x. So 3x is equals to minus r minus p. Simple. अब यहाँ से आप x को सब्जेक्ट बना लेंगे, get rid of the factor. ये आंसर आ गया. Here we were able to sum them up, but this won't be the case all the time. Here is another example. Question is px plus q is equals to qx minus r. px plus q बस ठीक है, qx minus r. Again x को सब्जेक्ट बनाना है. Now there are two terms with x, one on the left side and one on the right side. So collect the terms with x in it on one side. So px minus qx, this plus qx था, इधर आगे क्या हो गया? Minus. At the same time get rid of this, तो ये क्या हो जाएगा? Minus r. इधर पहले से मौजूद है plus q and moved on that side, तो minus q हो गया. When I was saying 5 apples minus 2 apples, I was able to give 3 apples. Now p apples, p times apple, p lots of apples and q lots of apples. I don't know what is it going to be, what is p and q. So how do I merge them? सोचें जरा. हाँ, we can factorize them. दो टर्म्स में माइनस का साइन है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते, x कॉमन लेना है. क्या आ गया? p minus q equals to minus r minus q. Now you can see one term with x सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, x equals, अब ये फैक्टर सिचुएशन आ गया, गेट रिड ऑफ द फैक्टर. सो माइनस r माइनस q ओवर p माइनस q. ठीक हो गया.
यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसपे इनाम है। इनाम कौन जीतेगा आज देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी इनाम कैसे दिया जाए, चले उस पे सोचेंगे, देखते हैं कौन करता है। ठीक हो गया? सो लेट्स सपोज यू हैव अ क्वेश्चन p square equals to q square plus r square minus 2 qr into cos of angle कैपिटल, चले कोई और लेटर लिख लेते हैं यहाँ पे, cos of angle a। इस पूरी इक्वेशन में आई वांट यू टू मेक cos of angle a the subject। if you haven't studied what is cos a तो टेंशन ना लें, आप समझे ये कोई एक नया अनोखा वेरिएबल है। ठीक हो गया? दिस इज वन वेरिएबल। cos a को एक वेरिएबल कंसीडर करें और इसको सब्जेक्ट बनाएं। चलें शाबाश। कितना नाम रखा है इसका? ओह फिर तो मैं सारी जिंदगी नहीं दे सकता, ये तो कर्जे में डुबो देंगे। इस दिन कितना इनाम होना चाहिए इसके ऊपर? यस इस दिन Yes, sir. इस पे कितना इनाम होना चाहिए? किस चीज का सर नाम लगाएंगे? cos a को सब्जेक्ट बनाने का। नहीं मतलब पैसों वाइज। पैसों का लगा लें, चले पैसों का इनाम लगा लेते हैं। इधर हमारे एक भाई हैं, वो कह रहे हैं $2 million ही वांट्स मी टू गो इन डेट, लाइफ टाइम डेट। सर 50 रुपए काफी है सर। है 50 रुपए काफी है। 200 रुपए? 50 रुपए। चलो 50 रुपए, ओके फाइन, चलेंगे 50 रुपए। 50 rupees कमिंग फ्रॉम अ टीचर, दैट ऑल्सो। हमारे टाइम पे 10 रुपए टीचर दे रहे थे, सर कह रहे थे इसको हम संभाल के रखेंगे। हरम कर लिया आपने? Yes, sir. ओहो, आपको इनाम नहीं चाहिए लगता है, आपने बताया ही नहीं है कि आपने कर लिया। Sir, I'm not sure to say galat. कोई मसला नहीं है, खैर है। हाँ जी, बताएं जी हरम, क्या आंसर है आपका? U square plus R minus P square over 2QR. यही बोला है आपने? जी। चेक करते हैं। अब्दुल रहमान। हाँ जी मोहम्मद, आपने कर लिया? ठीक है, चलिए बात है। मोहम्मद आपने भी कर लिया? Yes, sir. बताएं जी आपका क्या आंसर है? अच्छा, दिस आंसर केम फ्रॉम हरम। ठीक हो गई। अब आते हैं जी मोहम्मद की तरफ। मोहम्मद आप बताएं। Sir, under root P minus QR. अंडर रूट p माइनस क्यू आर। Q minus R, sir. ओके वेट, अंडर रूट p माइनस q and then minus r, is that what you're saying? Yes, sir. हाँ जी।
सर अंडर रूट के बाहर 2 प्लस क्यू आर। बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा क्या? प्लस प्लस। अच्छा, प्लस क्यू प्लस 2r, is that what you said? नो सर 2 क्यू आर। Okay, just 2qr. ठीक हो गया. This answer came from मोहम्मद. आपने कर लिया? आप भी बताएंगे अपना आंसर. p square minus q square minus r square over minus 2q r. This answer is coming from Bilal. आपने किया? बताएं. p bracket plus minus under root q plus r और अंडर रूट से बाहर माइनस 2qr. Anyone wants to add in it? Sir, my answer is q square plus r Okay. square minus p square divided by 2qr. Okay, wait a second. Come again. Q square plus r square minus p square Minus p square divided by 2qr. divided by 2qr. This answer is coming from isn't. Challenging. 50 rupees goes to Bilal and 50 rupees goes to Izin as well. This is the recommended one. ठीक है जी, good शाबाश. अच्छा जी, should I do it? Okay. Izin आपको 50 रुपीज डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगे. ठीक हो गया? चलिए मिलके नेक्स्ट पेज पे करते हैं. Okay, so question was p square equals to q square plus r square minus 2qr and then cos of angle. Okay. This is the desired variable. ठीक हो गया? One way of doing it is, okay, term situation है, factor situation है, या पहले bid match rule का opposite follow करें तो first priority में what do we need to do? Get rid of the terms. शाबाश. This is one single term here and total 3 terms है यहाँ पे. Q squared is one term, R squared is one term and 2QR cos A, this is one term. इसको सब्जेक्ट अब सबसे पहले आइसोलेट दिस टर्म, तो ये आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2qr cos A. यहाँ तक समझ में आया मोहम्मद? हरम, हरम आपने बेटा छोटी सी गलती की, आपने कर लिया मेरा ख्याल है. ट्रांसक्रिप्ट एरर उसको बोल सकते हैं. आपने कॉपी करने में प्रॉब्लम कर ली. यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता तो ये दो आंसर्स बिल्कुल सेम होते हैं. ये हरम से ये मिस हुआ था. ठीक है बेटे? जी सर, मैंने लिखा था, मैंने आपको बताने में मिस कर दिया. अच्छा 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 अच्छा. अच्छा जी, यहाँ से फिर उसके बाद चले फिर 50 रुपीज आपके भी हो गए. चले यहाँ से अब 2 माइनस 2qr, अब फैक्टर सिचुएशन होगी. इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा. खत्म बात. स्क्वायर रूट तब लें जब हमें इसके ऊपर स्क्वायर हो, तब मुझे इसके स्क्वायर को खत्म करना हो. इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर माइनस 2qr आपके पास रहता है कॉस ऑफ एंगल ए. तो दिस इज, ये ठीक है बट इससे स्मार्ट अप्रोच अब हम सीखते हैं यहाँ से. ठीक हो गया? ये टर्म है जिसको मुझे, जिसमें डिजायर्ड वेरिएबल है एंड दिस टर्म इज नेगेटिव. इस पूरी टर्म को मैं उठा के ले आता ताकि ये क्या हो जाए,
पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर, उसको हम उधर ले जाएंगे। ये देखें ये पूरी टर्म नेगेटिव है ना, ये पूरी टर्म 2QR cos है, दिस इंटायर टर्म इज नेगेटिव, तो इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इधर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी, वो क्या है, पी स्क्वायर, तो वो उधर चली जाएगी, वो क्या हो जाएगी, माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, सो दूसरा तरीका इसका क्या है, 2QR cos of angle A is equals to Q square plus R square minus P square, ऐसे ही होगा। ये Q स्क्वायर इधर, ये R स्क्वायर इधर, ये इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस P स्क्वायर था, ये दो जाके माइनस P स्क्वायर। अब 2QR मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड, ये है बेटा आ गया। ये क्यों मैंने करवाया, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला आता है कोसाइन रूल में, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा। कोसाइन रूल तो बेचारों को आता है बच्चों को, लेकिन ये लिख लेते हैं, फिर ये सब्जेक्ट नहीं बनता उनसे जब ये एंगल निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक हो गया। अब आपकी जो वर्कशीट है जो अलजेब्रा की जो मैंने आपको दी हुई है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस इज हाउ दे लुक लाइक। डिफरेंट कमांड वर्ड्स यूज करता है, राइट जो भी वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स, तो इसका मतलब भी यही है कि आपने रीअरेंज करना है, मेक एक्स द सब्जेक्ट, इधर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक हो गया, मैं एक अदर कोई क्वेश्चन निकाल के अच्छा से करता हूँ, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक वाई द सब्जेक्ट है, इधर वाई को सब्जेक्ट बनाना है आपने। ठीक है, तो मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे नजर आता है, मैं वो निकाल के करते हैं, मेक डी द सब्जेक्ट, इधर आपने डी को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, मेक एक्स द सब्जेक्ट, ये भी चले इसको मैं करता हूँ। अब x दो है, अब मसला ये, टू एक्स इज नॉट एज टर्म्स, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, जब भी ऐसा हो तो डिनोमिनेटर में अगर डिजायर्ड वेरिएबल आ गया ना, उसको खत्म कर दें। उसको कैसे खत्म करेंगे, बैलेंसिंग मेथड से, we multiply that on both sides of the equation. So if I multiply x on both sides of the equation, I multiply x here, I multiply x here. So what will that do? This x and this x will cancel out, and I'll be left with px is equals to x plus 3. Now I have two x's on two different sides of the equation. We'll collect all the x's on one side. I cannot sum these two up. P lots of x minus 1 lots of x. Factorize it. X common ले लें. P minus 1 आ गई. तो x आ जाएगा 3 over P minus 1. Yeah. So this is answer. 4 marks का question है. Look here. Piece of cake. There is no way you should be losing marks in it. इतनी basic चीज है. एक तो इसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, एक तो ये स्किल इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये स्किल इज बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। नोइंग फॉर्मूला वेरी गुड, बट फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करके आपको जो अननोन चीज फाइंड करनी है, इफ यू आर नॉट एबल टू रीअरेंज द फॉर्मूला, आपका सारा क्वेश्चन खराब हो गया। ठीक हो गया, सो यू डोंट वांट टू लूज मार्क्स जस्ट फॉर नॉट having the skill of rearranging the formula. That is why I always tell my students, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी करें। मेरे हिसाब से इसके कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस करने चाहिए, तब जाके उसके बाद आप अपनी मैथमेटिक्स में स्पीड भी चेक करेंगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन। अभी मैं जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, आई टोल्ड यू अलजेब्रा पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि दिस इज फाउंडेशन बिल्डिंग। इसके बाद आप खुद देखेंगे, अगर आपकी ये स्किल्स अच्छी हुई, आप मेरे साथ खुद स्पीड में भागेंगे, आगे आगे वाले टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर होंगे। ठीक हो गया, any questions, any doubt? Done. That's it for today. Inshallah, see you all tomorrow. But before tomorrow, इस वर्कशीट्स के सेम टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम। अल्लाह हाफिज।